Okay, so Assalamu alaikum. Well, in this video, we'll take a look at the greater omentum. We know that it is a fold of peritoneum extending from the greater curvature of stomach up till the coils of intestine, and it's also connecting the greater curvature of stomach with the transverse colon, जो हम आगे देखते हैं. Okay, so it's simply a fold of peritoneum जो कि extend कर रहा होता है like an apron from the greater curvature of stomach और नीचे rise कर रहा होता है till the coils of intestine. अब इसमें जिसके contents होते हैं it is mostly laden with fat. In addition to that, it's also having some small vessels, some small arteries, some small veins. अगर इसके attachment की बात की जाए so पहले देख लेते हैं कि this is how it looks like due to the presence of fat. This is quite yellow in color, and this is extending from the greater curvature of stomach till the coils of intestine, and also is connected to the transverse colon along with the transverse mesocolon. And this is the greater omentum, and this is a lesser omentum or the smaller omentum. It is extending from the lesser curvature of stomach or up till the liver, and the greater omentum is extending from the greater curvature of stomach up till the coils of intestine and the transverse colon. अच्छा जी, ये बात होगी इसकी अटैचमेंट की. अब ये एक साइड व्यू है, एक लेटरल व्यू है हमारे एब्डोमेन का, एंड वी कैन अप्रिशिएट द peritoneum or the fold, peritoneal fold extending from the stomach till the liver is the lesser omentum, and the fold of peritoneum extending from the stomach till the our coils of intestine till the transverse mesocolon, transverse colon, and the pancreas, उसका head और body से जो extend करता है portion, that is a greater omentum. So this whole portion is the greater omentum, and this portion is the lesser omentum. Now we don't have to, we should not confuse the lesser omentum with the lesser sac. Both are different. Lesser sac is basically a cavity like a bursa. It's also called omental bursa. इसी को हम lesser sac भी कहते हैं, इसको हम omental bursa भी कहते हैं, which is present between the two layers of the greater omentum. दोनों की layers के दरमियान में एक cavity बन जाती है, इसको हम बोलते हैं lesser sac. This is not the lesser omentum, but that is simply a layer of peritoneum extending from the stomach, so lesser curvature से लेकर till the liver, while the greater omentum is extending from the stomach going down, being continuous with the coils of intestine, then upward till the transverse colon and transverse mesocolon, and with the pancreas के head और body से तो continuous हो जाता है. So this is the lesser omentum, this is the greater omentum, and this is the lesser sac between the two layers of the greater omentum. We now know that we are having two layers of the ग्रेटर ओमेंटम. दो एंटीरियर होती हैं, दो पोस्टीरियर होती हैं. बेसिकली दो एंटीरियर लेयर्स होती हैं, तो वही पीछे जाके कंटिन्यूस होकर दो पोस्टीरियर लेयर्स बना देते हैं. तो इन दिस वे वी हैव 4 लेयर्स टोटल, 1 2 3 एंड 4. तो इससे 4 लेयर्स बन जाती हैं. जो फर्स्ट लेयर होगी वो पीछे जाके 4th लेयर बना देगी, और जो सेकंड लेयर होगी पीछे जाके 3rd लेयर बना देगी ग्रेटर ओमेंटम की. एंड बाय द एंड दे विल हैव टू रीच द हेड एंड बॉडी ऑफ पैंक्रियाज, और यहाँ जाके उसका कंटिन्यूस हो जाता है, फिर वो एक्सटेंड करते हैं अपवर्ड टिल द डायफ्राम. सो दिस इज द ग्रेटर ओमेंटम एक्सटेंडिंग फ्रॉम द स्टमक टिल द इंटेस्टाइन्स टिल द ट्रांसवर्स कोलन एंड ट्रांसवर्स मेसोकोलन, एंड फाइनली गेट्स अटैच्ड ऑन द पैंक्रियाज. बिकॉज यू नो द जो पैंक्रियाज है वो बेसिकली स्टमक के बिहाइंड ही पड़ा हुआ, तो एक तरह से ना एक एप्रन सा बन जाता है, फोल्डेड स्ट्रक्चर बन जाता है, विच इज हैविंग 4 लेयर्स. अच्छा जी, नाउ बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड लेयर वी आर हैविंग द मेजर वेजल्स. जितनी भी वेजल्स होंगे ना इस रीजन जो प्रेजेंट होगी वो फर्स्ट एंड सेकंड लेयर के दरमियान में ही होगी, एंड बिटवीन द सेकंड एंड थर्ड लेयर वी हैव द लेसर सैक. तो बस हमें यही पता होना चाहिए यहाँ पर. सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक कि कैसे एक्सटेंड कर रहा है. ये हमारा लेसर ओमेंटम है बिकॉज इट एक्सटेंडिंग फ्रॉम द स्टमक लेसर कर्वेचर से टिल द लिवर. ये ग्रेटर ओमेंटम एक्सटेंडिंग फ्रॉम द स्टमक टिल द कॉल्स ऑफ इंटेस्टिन, देन पासिंग अपवर्ड टू द ट्रांसवर्स मेसोकोलोन एंड ट्रांसवर्स कोलोन, और उसके बाद ये एंटीरियर टू द पैंक्रियाज उसकी बॉडी और हेड के साथ कंटिन्यूस होकर खत्म हो जाता है. सो दिस इज द अटैचमेंट. और देखें बिटवीन द सेकंड एंड थर्ड लेयर ऑफ द ग्रेटर ओमेंटम वी हैव दिस कैविटी, दिस बर्सा कॉल्ड एज ओमेंटल बर्सा और लेसर सैक. सो दिस इज व्हाट वी शुड नो. अच्छा जी, ये बात होगी. इसके अलावा हम कहते हैं कि इसके कंटेंट्स क्या है. सो द कंटेंट्स आर बेसिकली फैट. फैट ही वहाँ पे बेसिकली प्रेजेंट. इसके अलावा जो वो सारी वेजल्स सप्लाई करती हैं ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक को, विच इज आर द राइट एंड लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरीज एंड द राइट एंड लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक वेन्स जो वहाँ से ड्रेन कर रही हैं, वही इसके कंटेंट्स में भी आते हैं, बिकॉज आफ्टर इट अटैच्ड ऑन द ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक. तो बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड लेयर ऑफ द ग्रेटर ओमेंटम वी हैव द प्रेजेंस ऑफ द राइट एंड लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरीज एंड द वेन्स, एंड इन एडिशन टू दैट वी ऑल्सो हैव द फैट, सम लिम्फ नोड्स, बस, और कुछ लिम्फेटिक्स वगैरह. राइट. अब बात करते हैं कि इसका फंक्शन क्या होता है. हमें ये ग्रेटर ओमेंटम में हमें एक एप्रन, एक पर्दे जैसा स्ट्रक्चर चाहिए क्यों होता है. सो इट बेसिकली एक्ट्स एज स्टोर हाउस फॉर फैट. एक तो फंक्शन ये हो गया. सेकंडली कनेक्ट कर रहा होता है हमारे स्टमक को, एज वी ऑलरेडी सीन विद द ट्रांसवर्स कोलोन, तो सेकंड फंक्शन ये भी हो गया. थर्ड फंक्शन ये होता है कि बेसिकली ये इसके अंदर ना बहुत सारे मैक्रोफेजेस की कंडेंसेशन होती हैं, जिसकी वजह से ना ये इन्फेक्शंस को प्रिवेंट भी करता है. सो टू फाइट इन्फेक्शंस वी हैव द प्रेजेंस ऑफ मैनी मैक्रोफेजेस जो कलेक्शन में पड़े होते हैं. इस वजह से हम इस रीजन को एक ये कहते हैं कि ग्रेटर ओमेंटम इज हैविंग सम मिल्की स्पॉट्स, बिकॉज उनकी कलेक्शन से इस पे वाइट से पैचेस बन जाते हैं, टू विच यू कॉल्ड एज हैविंग द मिल्की स्पॉट्स. तो मिल्की स्पॉट्स की प्रेजेंस भी इसको एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बनाती है. फोर्थ इज द whenever there is an infection in the abdominal cavity, this greater omentum migrates to the site of infection and seals that site so that infection will not spread from that site to the other healthy regions. So that is why we also call it as a policeman of the abdomen. The greater omentum is called as a policeman of abdomen because it can migrate
माइग्रेट टूवर्ड्स द साइट ऑफ इन्फेक्शन, कैन सील ऑफ और क्लोज ऑफ दैट साइट, राइट. ये तो होगा इसका फॉरवर्ड फंक्शन. फिफ्थ ये है कि ग्रेटर मोमेंटम कैन ऑल्सो separate, yeah, it can also divide the greater sac into a infracollic compartment and supracollic compartment. As we have seen that इसकी attachment हो रही होती है on the transverse colon, तो जो transverse colon के ऊपर हो जाएगा वो supracollic हो जाएगा, नीचे होगा वो infracollic compartment. This bit has the ability to divide the greater sac of the abdomen into a supracollic compartment and an infracollic compartment. सो ये हो गए उसके कुछ फंक्शंस के. इसमें फैट की स्टोरेज हो रही है. इसमें मिल्की स्पॉट्स हैं जो कि इन्फेक्शन को प्रिवेंट करें, क्योंकि मिल्की स्पॉट्स आर बेसिकली कंडेंसेशन ऑफ मैक्रोफेजेस. इसलिए उसको पुलिसमैन ऑफ एब्डोमेन भी कहते हैं, बिकॉज इट कैन माइग्रेट टू द साइट ऑफ इन्फेक्शन, कैन सील ऑफ दैट साइट. इस अलावा ये डिवाइड कर रहा है हमारे ग्रेटर सैक इनटू सुप्राकोलिक एंड इंफ्राकोलिक कंपार्टमेंट. और बस ये एज अ स्टोर हाउस ऑफ फैट है, और तो इसके कोई फंक्शन नहीं है एज सच. हाँ, और कनेक्ट कर रहा है ये स्टमक को विद द ट्रांसफर्स कोलोन, वो भी फंक्शन है इसका. सो दिस वाज ऑल अबाउट द ग्रेटर मोमेंटम. सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. अल्लाह हाफिज़.